નમસ્તે મિત્રો, ડેરી 25 ક્વેશ્ચન્સ જીકે એન્ડ કરંટ અફેર્સમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં પેપર સોલ્યુશન 2020 ધોરણ 6 વિષય હિન્દીનું મિત્રો સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ મિત્રો. તો મિત્રો, આ વિડીયો વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડી દેજો. તો શરૂઆત કરી મિત્રો. જોઈએ કે મિત્રો, પેપર સોલ્યુશનમાં જો તમને કંઈ ભૂલ જણાય તો કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં, કે જેથી કરીને ભૂલને સુધારી શકાય. બીજી વાત એ મિત્રો કે વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડો કે જેથી કરીને એ સારી રીતે સમજી શકે અને લખી પણ શકે. તો આગળ જોઈએ મિત્રો. ધોરણ 6 વિષય हिंदी प्रश्न 1 अ सही विकल्प चुनकर प्रश्न का उत्तर दीजिए. हाँ, बराबर है. तो मित्र આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ પ્રશ્નોને. તો જોઈએ कि एक, आप चाय पसंद करोगे, खाली जगह कॉफ़ी. तो आप चाय पसंद करोगे लेकिन कॉफ़ी, फिर कॉफ़ी या कॉफ़ी ताकि कॉफ़ी. तो मित्रों, आ चार ऑप्शनમાંથી કયો સાચો છે લખવાનું છે. તો આપ ચાય પસંદ કરોगे या कॉफ़ी, या આવશે. કયો આવશે? या. આગળ બીજો, किताबें ज्ञान का स्रोत है, રેખાંકિત શબ્દ का वचन परिवर्तन कीजिए. રેખાંકિત એટલે કે જે લીટી દોરી છે એને એનું શું કરવાનું છે? વચન પરિવર્તન કરવાનું છે. અહીંયા ચાર ઓપ્શન આપે: કિતાબો, કિતાબે, કિતાબો, કિતાબ, કિતાબી યા કિતાબે. તો દોસ્તો, જે કિતાબે છે એ બહુવચન છે, તો આપણે શું કરવાનું છે? લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે. વચન પરિવર્તન કરવાનું છે. એટલે કે બહુવચન તો આપણે એક વચન બનાવવાનું. તો શું આવશે? કિતાબ. શું આવશે? કિતાબ એટલે બી જવાબ આવશે. किताब ज्ञान का स्रोत है. આગળ, ભિન્ન શબ્દ પહોંચાડીએ. કે જે અલગ શબ્દ કયો છે એ પહોંચાડવાની છે, એ ઓળખવાનો છે. પોસ્ટકાર્ડ, અંતર્દેશીય પત્ર અને લિફાફા. અને ચોથું, કમ્પ્યુટર. તો મિત્રો, જે પોસ્ટકાર્ડ છે, અંતર્દેશી પત્ર છે, લિફાફા છે, એ મિત્રો પત્ર લખવા માટેના સાધનો છે. જ્યારે કમ્પ્યુટર છે એ એક યાંત્રિક સાધન છે, અલગ પડે છે કમ્પ્યુટર. આગળ, ગલત જોડ પહોંચાડવાની છે, કે ખોટી જોડ કઈ છે આપણે શોધવાની છે. સોદાગર એટલે કે વેપારી, પંસારી એટલે ગાંધી, તમોલી એટલે તંબોળી અને ખરાદી એટલે ઘડિયાળી. તો ખોટી જોડ કઈ છે એ શોધવાની છે. તો કે છે ખરાદી એટલે ઘડિયાળી. જવાબ ખોટો છે, એટલે આ આપણે સાચો આવશે. ડી, ખરાદી એટલે ઘડિયાળી. આગળ, એક કે બાદ શું કે છે? एक के बाद एक विपत्ति में फंसना अर्थ वाली कहावत ढूंढिए. एक के बाद एक विपत्ति में फंसना જેનો સાચો અર્થ હોય એ કહાવત શોધવાની છે. જો ગરજતે હૈ વો બરસતે નહીં, આસમાન से गिरा खजूर में अटका, नाम बड़े दर्शन छोटे, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा. तो मुझे दोस्तों સાચો ચીયો છે એક કે બાદ એક વિપત્તિ में फंसना. तो आसमान से गिरा खजूर में अटका એ જે છે સાચો જવાબ છે, એટલે કે બી ઓપ્શન સાચો આવશે. આગળ, संयुक्त अक्षर वाला शब्द ढूंढिए. संयुक्त એટલે જે જોડેલો હોય એ શોધવાનું છે. યુદ્ધ, પરેશાની, બહુત કે બબુલ. તો જે જોડેલો મિત્ર શબ્દ છે કયો છે? યુદ્ધ છે. કયો છે? યુદ્ધ. એટલે કે એ જવાબ સાચો આવશે. આગળ, यह भी एक परीक्षा, इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? यह भी एक परीक्षा, જે ઇકાઈ છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર કયો છે? પ્રસંગ વર્ણન છે, પત્ર લેખન છે, એકાંકી છે કે કહાની છે? તો મિત્રો શું છે? यह भी एक परीक्षा એક એકાંકી છે, એટલે કે સી જવાબ સાચો આવશે. આગળ જુઓ, અપીલ શબ્દ કા અર્થ પહોંચાડીએ. જે અપીલ શબ્દ આપ્યો છે એનો સાચો જવાબ શું થાય, એનો અર્થ શું થાય જો શોધવાનું છે. અપીલ એટલે સચ્ચાઈ, નિવેદન, દલીલ કે ખોજ. તો અપીલ એટલે નિવેદન, એટલે કે બી જવાબ સાચો આવશે. આગળ જુઓ, પરિષદ કો પઢકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए. તો મિત્રો, અહીંયા ફકરો આપ્યો છે એને એક વાંચવાનો પછી જવાબ લખવાનો છે. તો આપણે એક ફટાફટ વાંચી જઈએ. दूरदर्शन मनुष्य जाति के लिए वरदान है, मनोरंजन के क्षेत्र में इसने क्रांति पैदा कर दी है, इसलिए इस पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में देश विदेश की घटनाओं का सीधा प्रसारण किया जाता है. जल थल नभ की गहराइयों के रहस्य को उजागर किया जाता है. विज्ञान तथा इतिहास की जानकारी प्रदान की जाती है. दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले अनेक कार्यक्रम जन जागरण करने में भी सक्षम है. दूरदर्शन का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि अनेक सामाजिक बुराइयों के प्रति जनाक्रोश जागरूक करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तो અહીંયા
પરિચ્છેદ આપ્યો છે તો એના પ્રશ્નો લખવાના છે આપણે, તો જોઈ લઈએ. જોઈએ પ્રશ્નો, જો પ્રશ્નો કયા કયા છે તે આપણે શોધી લઈએ. परिच्छेद में से विलोम शब्द की जोड़ बनाइए. विरोधी शब्द वो बतावाना है. तो जो अँ मित्र आप टीक कर्या छे विरोधी देश विदेश, तो जवाब शू आवशे? विलोम शब्द शू आवशे मित्रों? देश विदेश. आ विलोम है, एक बीजाना विरोधी है. बीजो प्रश्न, दूरदर्शन ने किस क्षेत्र में क्रांति पैदा की है? तो मनोरंजन के क्षेत्र में इसने क्रांति पैदा कर दी है. तो ये पण आपणे जोयो छे. जो दूरदर्शन ने मनोरंजन के क्षेत्र में इसने क्रांति पैदा कर दी है, એટલે આ પણ જવાબ આપણે લખેલો છે. બરોબર છે. આગળ જતી જો आसमान शब्द का समानार्थी शब्द, आसमान એટલે શું થાય? નભ. તો અહીંયા શોધી લખવાનું છે. તો શું છે? જો અહીંયા બતાવ્યું છે આસમાન એટલે નભ, અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે નભ. આગળ જુઓ, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए. तो दूरदर्शन एक वरदान है. उचित शीर्षक છે શું છે? કે दूरदर्शन एक वरदान है, એ शीर्षक રાખી શકાય. આગળ જુઓ, सूचना अनुसार लिखिए. सूचना अनुसार लिखिए. तो જોઈએ શું જવાબ આવશે? सूचना अनुसार लिखવાનું છે. તો શું જવાબ આવશે? કહાવત કા अर्थ देकर समझाइए. અહીંયા કહેવત આપી છે, એનો અર્થ આપી અને સમજાવવાની છે. તો જોઈએ, कंगाली में आटा गीला. कंगाली में आटा गीला એટલે गरीबी में और अधिक हानि होना. कंगाली में आटा गीला એટલે गरीबी में और अधिक हानि होना, कि जब આપણે ગરીબ થઈએ હોઈએ ત્યારે વધારે નુકસાન આપણે થઈ શકે છે. તો શું આવશે એનો समझौती? कि जब हम गरीब होते हैं तब जीवन में सारे मौज मस्ती नहीं कर सकते. जो चीज़ हम पसंद है, जो चीज़ हमें पसंद है, उनको हम पा नहीं सकते, क्योंकि हम गरीब है इसीलिए हम पा नहीं सकते. ठीक है. आगे જોઈએ, लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. बीजू, लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो ये बाग, बाग એટલે બાગીન. બરાબર. હવે વાક્ય में प्रयोग करिए. तो જોઈએ, बाघिन अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही है. बाघिन अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही है. ठीक है, बराबर. जो ये प्रश्नों प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. अगर आपको नेपोलियन का पत्र कैसे लगा? आपको नेपोलियन का पत्र कैसे लगा? क्यों? तो अच्छा लगा. आपको नेपोलियन का पत्र कैसा लगा? तो सौ से अच्छा लगा. क्यों लगा? तो जवाब, क्योंकि हमें इससे अच्छाई के पथ पर, क्योंकि हमें इससे अच्छाई के पथ पर चलना चाहिए, ऐसी सीख मिलती है. आपको नेपोलियन का पत्र अच्छा लगा. क्यों? तो अच्छा लगा इसलिए क्योंकि हमें इससे सच्चाई के पथ पर चलना चाहिए, ऐसी सीख मिलती है. आगे जो बीजो प्रश्न, भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? भिखारी के कटोरे में क्या क्या था? तो कुछ पकौड़ियाँ थी, अमरूद के फल थे, रोटी के टुकड़े थे, वो सारी चीज़ें उसके कटोरे में थे. आगे જોઈએ, आपने किसी को पत्र लिखा है? क्यों? हाँ, लिखा है. क्यों? तो તમારે જે રીતે તમે પત્ર લખ્યો હોય એ તમે લખી શકો છો. હું મારી રીતે લખું છું. તો हाँ, जन्मदिन की बधाई देने को. हाँ, मैंने मेरे दोस्त को पत्र लिखा है, मेरे उनके जन्मदिन के बधाई देने को. ठीक है. अगर अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छिपाई होगी? अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छिपाई होगी? तो किसी को पता न चले इसीलिए. किसी को पता न चले इसीलिए उन्होंने जो मोहरे थी वो मोहरे तेल के डिब्बे में छिपा दी थी. आगे, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? तो देवेंद्र क्या समझता था कि वह भी एक परीक्षा है, भिखारी को मदद करना वो भी एक परीक्षा ही है, इसलिए उन्होंने उनकी परीक्षा होते हुए भी भिखारी को मदद की. अगर जो सोनू डॉक्टर के पास क्यों गया? तो सोनू डॉक्टर के पास इसलिए गया क्योंकि सोनू का सिर फट गया था. सोनू का सिर फट गया था, इसलिए सोनू डॉक्टर के पास गया. अगर જોઈએ, મિત્રો પ્રશ્ન કે ઉત્તર દીजिए. મિત્રો આ પ્રશ્ન બહુ લાંબા છે એટલા માટે તમે પુસ્તકમાંથી શોધીને લખી દેજો. બરાબર છે. આ પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में तो જોઈએ, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? तो हम सबको खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं. हम जगत में सबको खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं. बीजो, कंप्यूटर और इंटरनेट
से हमें क्या लाभ हुए हैं? तो कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें ये लाभ हुई है कि क्रांति हुई है और अदर अदर पर खुशहाली आई है। कंप्यूटर से क्रांति हुई है और अदर अदर पर खुशहाली आई है। बीजू, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो ऐसा कहकर वह भगवान से इतनी शक्ति मांगते हैं, क्योंकि मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कहकर वह भगवान से इतनी शक्ति मांगते हैं, इसीलिए कहते हैं। अगला प्रश्न, संदेशा व्यवहार किन किन उपकरणों के माध्यम से हो सकता है? संदेशा व्यवहार किन किन उपकरणों के माध्यम से हो सकता है? तो मोबाइल से, पत्र से, फैक्स से, पेजर से, ईमेल से, वर्तमान पत्र से। और दोस्तों जो जो साथ आप करते हैं वो आप लिख सकते हैं। આગળ જોઈએ किस प्रश्न के उत्तर दीजिए दोस्तों। आ प्रश्न पर मोटा है એટલે તમે શોધીને લખી દેજો બુકમાંથી। આગળ જોઈએ, કાવ્ય पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। हम न सोचे, आ एक प्रार्थना है तो જોઈ લઈએ આપણે। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। सोचे तो हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। आ काव्य पंक्ति આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ, બરાબર। આગળ જોઈએ, प्रश्न ड, विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो थोड़ा, थोड़ा एक विशेषण है तो एનો उपयोग કરીને वाक्य बनावानुं छे। तो मेरे पास थोड़ा मक्खन है, मेरे पास थोड़ा मक्खन है, आ वाक्य આપણે બનાવ્યું છે, બરાબર। બીજું જોઈએ તો तीसरा, तीसरा એ પણ એક વિશેષણ છે। तो इसने तीसरा, तीसरा આવી ગયું, इसने तीसरा फोन भी तोड़ दिया, उसने तीसरा फोन भी तोड़ दिया। बीजું वाक्य, वो तीसरी कक्षा में, अँ पर तीसरा आ गયું, वो तीसरी बार कक्षा 7 में फेल हुआ। आगे જોઈએ, प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है लिखिए। એટલે કે નીચેનું વાક્ય કોણ બોલે છે અને કોને કહે છે એવું લખવાનું છે। તો પહેલું વાક્ય જોઈએ આપણે, अंधा क्या है, अंधा क्या है, सॉरी, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। आ वाक्य कोण बोले છે? तो मित्रों आ कप જે વાક્ય છે વાક્ય એક ચાવાળો બોલે છે, એટલે કે ચાયવાળા बोलता है और एक બાળકને કહે છે। શું કહે છે? अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। तो ये वाक्य कौन बोलता है? तो एक चायवाला बोलता है और एक बालक को कहता है। दूसरा वाक्य, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूँ। वो वाक्य कौन बोल रहा है? तो एक विद्यार्थी बोले છે અને એક બાબાને કહે છે। एक विद्यार्थी बोल रहा है और बाबा को कह रहा है। જોઈએ આગળ, ब, શુદ્ધ વાક્ય में लिखिए। અહીંયા નીચેના વાક્યો આપ્યા છે એમાં થોડીક ભૂલો આપી છે તો આપણે એને સુધારીને ફરીથી લખવાનું છે। તો જોઈએ પહેલું વાક્ય, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। तो वाक्य में थोड़ी भूल है, सुधार लखीए, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया, टिकट ली नहीं, टिकट लिया, बराबर है, एटले त्यां सुधारवानुं छे। जोईए बीजुं वाक्य, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। तो अहींया हुआ नहीं आ पण हुई आवशे। जोईए, रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई, शुं आवशे? हुई आवशे, हुआ नहीं आवे। आगे जोईए, मैंने पुस्तक खरीदा, तो मैंने पुस्तक खरीदी, दा नहीं आवे, दी आवशे, बराबर छे। आगे जोईए, चौथुं, आज भारी बरसात हुआ, तो आज भारी बरसात हुई, शुं आवशे? हुई आवशे। आगे जोईए, सूचना अनुसार कीजिए। समान प्रास वाले दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। समान प्रास वाले दो दो वाक्य बनाकर लखवानुं छे। तो अहींया एक जेवुं, समान એટલે કે एक जेवा जे वाक्य होय, अहींया नौकरानी तो पाछळ रानी, रानी शब्द जे आवतो होय ए આપણે લખવાનું। तो જોઈએ, रानी तो देवरानी लखी शकाय, बे पूछ्या बे त्रण लखी दे, बहुरानी, महारानी, तमने आगळ जे पण आवता होय बधा तमे लखी शको छो। आगळ જોઈએ बीजो, आर्थिक तो जे आगळ ठीक आवतो होय, ईक पाछळ ईक आवतो होय ए लखी शकाय। तो श्रमिक, धनिक, बौद्धिक अहीं આપણે લખ્યા છે, તમને આનાથી વધારે આવડે તો તમે લખી શકો છો। આગળ જોઈએ,
मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। શું છે કે મુહાવરે કા અર્થ દેकर વાક્ય में प्रयोग कीजिए। सिर पकड़कर बैठना, અહીં એક મુહાવરો આપ્યો છે કે सिर पकड़कर बैठना, આ મુહાવરો આપ્યો છે એટલે કે હતાશ હોના, નિરાશ હોના। सिर पकड़कर बैठना એટલે हताश होना, निराश होना। तो इन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक चुनाव हारने से मगनलाल, एक चुनाव हारने से मगनलाल फिर सिर पकड़कर बैठ गए। एक चुनाव हारने से मगनलाल सिर पकड़कर बैठ गए, અહીં આપણે વાક્ય પ્રયોગ કર્યો છે। બરાબર છે। તો મિત્રો આપણે અહીંયા આ પેપર પૂરું કરીએ છીએ। તો જો તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર।